শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু জীবে দয়া করি, সপার্ষদস্য ধাম সহয়াবতরি। হরে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ, প্রণাম। আমরা শ্রী কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কৃত শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের আদি লীলায় আছি। সপ্তম পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 120 থেকে শুভারম্ভ করিব। চৈতন্য চরিতামৃতম আদি 7.120 অনওয়ার্ডস। হেন জীব তত্ত্ব লইয়া লিখি পর তত্ত্ব বলে কই, হেন জীব তত্ত্ব লইয়া লিখি পর তত্ত্ব, আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ব। আচ্ছন্ন করিল শ্রেষ্ঠ ঈশ্বর মহত্ব। মায়াবাদ দর্শন এতই নীচ যে জীবকে ভগবান বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তার ফলে পরতত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্ব আচ্ছাদিত হয়েছে। এই সম্পর্কে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে জীবতত্ত্বকে ভগবানের শক্তি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ যদি জীবকে ভগবানের অতি ক্ষুদ্র স্ফুল্লিঙ্গ বলে গ্রহণ না করে পরম ব্রহ্ম পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সমান বলে মনে করে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার সেই দর্শন সম্পূর্ণভাবে ভ্রান্ত। দুর্ভাগ্যবশত শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য জেনে শুনেই জীবতত্ত্বকে ভগবানের সমকক্ষ বলে দাবি করেছেন। তাই তার সমস্ত দর্শন ভুলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই তা বিপথে পরিচালিত করে মানুষকে নাস্তিক পরিণত করে এবং তাদের জীবনের উদ্দেশ্যে ব্যর্থ হয়। समझ गया? तो अगर जीव अपने आप को भगवान समझने लगा, हाँ मैं ही सब कुछ, मैं ही भगवान हूं, तो फिर वो तो भगवान को मानेगा नहीं। इसीलिए नास्तिक प्रचार हुआ। मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ में आया ये पॉइंट? वेरी गुड। ভাগবত গীতা বর্ণনা অনুসারে মানব জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের শরণাগত হওয়ার মাধ্যমে ভগবত ভক্তে পরিণত হওয়া। কিন্তু মায়াবাদ দর্শন ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে জীবকে ভ্রান্ত পথে পরিচালনা করে এবং তার ফলে জীব মনে করে যে সেই হচ্ছে পরমেশ্বর। এভাবেই তা শত সহস্র নিরীহ মানুষকে বিপথে পরিচালিত করে। समझ में आया? जीव सोचता है मैं ही भगवान हूं, इसलिए भगवान का अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता, जीव नास्तिक बन जाता है। বেদান্ত সূত্রে ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন সর্বশক্তিমান এবং চিৎ ও অচিৎ সবকিছুই তার শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে। পরম ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর ভগবান সবকিছুর উৎস, জন্মাদর্শ যত এবং সবকিছুর ভগবানের বিভিন্ন শক্তির প্রকাশ। সেই কথা বিষ্ণু পুরাণও বর্ণিত হয়েছে। এক দেশ স্থিত সাঙ্গে জ্যোৎস্নাৎ বিস্তারিণী যথা পরস্য ব্রহ্মণ্য শক্তিস্ত খেদমখিলং জগৎ। অগ্নি যেমন এক স্থানে অবস্থিত থেকেও সর্বত্র তা কিরণ বিস্তার করে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির প্রভাবে সমস্ত জগতের প্রকাশ হয়েছে। এই দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত উজ্জ্বল। তেমনি আবার বর্ণনা করা হয়েছে এই জড়জগতে সবকিছুর যেমন সূর্যের শক্তি সূর্য কিরণের উপর নির্ভর করে বিরাজ করে, তেমনি সবকিছুই পরমেশ্বর ভগবানের চিৎ শক্তি ও জরা শক্তির উপর নির্ভর করে বিরাজ করে। ধ্যান से सुनिए, कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछिएगा। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ যদিও তার শিরোধামে থাকেন, গোলোক এব নিজ সত্য খিলাত্মা ভূত, যেখানে তিনি নিরন্তর তার গোপ সখা ব্রজগোপিকাদের সঙ্গে অপ্রকট লীলা বিলাস উপভোগ করেন, কিন্তু তবুও তিনি সর্বত্রই বিরাজমান। এমনকি ব্রহ্মাণ্ডের প্রতি পূর্ণ পরমাণুতেও अंडांतरस्थ परमाणु चयंतरस्तम। এটি হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের তথ্য। सबको समझ में आया अभी तक? देख लीजिए कोई लाइन जो समझ में नहीं आ रहा है। समय का अपव्यय ना हो, जब क्लास कर ही रहे हैं तो हर एक चीज समझ में आने से अच्छा होगा ना। দুর্ভাগ্যবশত মায়াবাদ দর্শন জীবকে ভগবান বলে দাবি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।
এবং সমস্ত জড়জগৎ জুড়ে ব্যাপকভাবে নাস্তিকবাদ প্রচার করে জগতের সর্বনাশ করছে। মানব সমাজের এই সবচেয়ে বড় ক্ষতি সাধন করছে। এই জঘন্য মায়াবাদ দর্শন প্রতিহত করার জন্য শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করেছেন। হরি নাম এব কেবলম কলো নাস্তেব 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 গতিরন্যথা। কলহ ও প্রবঞ্চনাময় এই কলিযুগে ভববন্ধন মোচনের একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান দিব্য নাম কীর্তন করা। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই, আর কোনো উপায় নেই, আর কোনো উপায় নেই। মানুষকে কেবল হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে হবে এবং তার ফলে তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারবে যে তারা পরমেশ্বর ভগবান নয়, তারা হচ্ছে ভগবানের নিত্য সেবক। এভাবেই মায়াবাদ দর্শন প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হবে। কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হন তখন সে ভগবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। হরি বল। মাম চবায় বিচারে না ভক্তি যোগে না সেবতে সগুণান সমতীতান ব্রহ্ম ভূয়ায় कल्पते। বলুন মাতাজি। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, ये जो मायावादीज है, जैसे आई डोंट नो वेदर शुड आई टेक द नेम और नॉट, आरकेएम एंड ऑल। No, don't take अच्छा, आई शुड नॉट टेक द नेम, ओके। बट दे आल्सो हैव टेम्पल्स, वहाँ भी उनके भजन कीर्तन होते हैं, पीपल डू गो देयर, दे हैव देयर ओन वे ऑफ सर्विंग लॉर्ड, मतलब उनके जो गुरु है उनको। तो एथिस्ट कैसे बन गए वो लोग? दे आर नॉट एथिस्ट। डिपेंड्स ऑन, बिकॉज आप जिनको मायावाद बोल रहे हो सकता है वो व्यक्ति देखिए, एक भी हो सकता है कि वो बहु लोगों को भगवान मानता है। आप जो इंस्टीट्यूशन या जो उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, हो सकता है उन लोग का मंदिर में विग्रह होने के बावजूद उनको लगता है कि हम लोग भी भगवान बन जाएंगे। हमारे पूर्णता ये एक तो है उनका, जैसे दे फील, उनका क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में मिल जाते हैं। ब्रह्म ज्योति में मिलना और अपने आप को भगवान समझना, तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो वो निराकारवादी, उसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कि आप जिसको विग्रह देख रहे हैं वो, लेकिन वो बोलता है कि मैं भी भगवान बन जाऊंगा, ब्रह्म साहित्य हो जाएगा। कोई बोलता है ईश्वर साहित्य हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ईश्वर साहित्य, ब्रह्म साहित्य। ईश्वर साहित्य माने ईश्वर में विलीन हो जाएंगे, फिर हम भी भगवान हो जाएंगे। और ब्रह्म ज्योति में विलीन होना माने निराकारवाद। बोलता है कि मैं भगवान का ब्रह्म ज्योति को मानता हूँ और भगवान का साकार रूप है ही नहीं, भगवान कोई व्यक्ति है ही नहीं। ऐसे भी कोई हो सकता है जो जिसका मंदिर में जाने से भगवान का फोटो नहीं मिलेगा, माँ बाबा भाई बहन काका काकी जेठा जेठी फोटो मिलेगा। मालूम है ना? देखे ऐसे? देखे नहीं? प्रभु किसका कहाँ देखे, दिमाग में नहीं आ रहा। देखिए, हाँ, नाम मत बोलिए, नाम लेना नहीं है। प्रभु बहुत अच्छा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। तो नहीं, ऐसे प्रभु, बनारस में देखे थे जो बहुत बड़ा प्रेम मंदिर बोल के, बहुत विशाल धर्म, उसी के अंदर में खाली राजा का फोटो लगा, उसके पत्नी बच्चों का फोटो लगा। तो नाम बोल रहा है माता जी, क्यों बोल रहा है? मैंने विग्रह में भी नहीं देखे अंदर में कोई भी। तो अंदर में ऐसे बहुत है। तो इन लोग भौतिक व्यक्ति को ही भगवान समझता है, जिसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है शास्त्रों में, उन लोग को भगवान बना दिया। और कोई ऐसा भी है जो जादू दिखाता है, बस ये पॉकेट से या हाथ का जो कुर्ता का जो स्लीव्स है उसके अंदर से एक सोना का चेन निकाल देगा और आपको दे देगा। आप बोले अरे वाह भगवान, ये देखो भगवान, जीता जागता भगवान। ये तो फ्रॉड हुए, दे आर ऑल फ्रॉड। एकदम फ्रॉड आप बोल रहे हैं। अभी उस व्यक्ति का कुछ 6 महीना 5 महीना आगे 50वां या 100 साल ऐसे कुछ हुआ सेलिब्रेशन। यू शुड सी द नंबर ऑफ एडुकेटेड पीपल। मेरे को भी मैसेज आया, वो एक डॉक्टर है अपोलो क्लिनिकल्स का, वो दिखाया, वो उसका मैसेज आया 50 ईयर सेलिब्रेशन, 150 ईयर सेलिब्रेशन। मैंने कितना बार बोला आप लोगों को, ये व्यक्ति को बीबीसी ने, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ने इतना पर्दाफाश किया, यूट्यूब में वीडियो देखिए, लेकिन पढ़े लिखे लोग भी क्या बोले। यस, प्रीति में नंद माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, अभी कोई एक गुरु महाराज जैसे निकले हैं, सब मतलब अभी मेरी जानकारी में है, वो बोल रहे हैं कि वो शिव के अवतार है और उनका ही फोटो
से पूजा हो रहा है और पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग कर रहे हैं, प्लस उनको सुबह में नाश्ता में चाय और बिस्किट दिया जा रहा है वाह। और उनके सामने हर समय पानी का एक तो बोतल रखा रहता है फोटो के सामने, और वो बोतल का पानी सारा दिन परिवार को पिलाया जा रहा है क्योंकि पूरा परिवार का भला होगा। और बोला जा रहा है ये जो गुरु जी हैं वो शरीर छोड़ चुके हैं अपना, और उनका जो और सब जो है उनके पीछे वो लोग अब बाकायदे ऑनलाइन के थ्रू, मतलब आपको मैसेज आ जाएगा, अगर आप उनको पसंद कर रहे हैं, आप उनको फॉलो कर रहे हैं, आपको मैसेज आ जाएगा वाह। कि आपका इससे ऐसे करके भला होगा। और ऐसे लोग फंसे हुए हैं प्रभु जी कि हम बता नहीं पा रहे कि इतने मतलब इतने क्लोज के लोग फंसे हुए उसमें। हाँ, तो इनका टीम ज्यादा। भी अच्छा मिला, व्हाट्सएप करेगा, टीम भी अच्छा मिल गया। ऐसा हम लोग भी कभी कर सकते हैं, हमको भी अच्छा टीम मिल गया, आईटी वाईटी सब कुछ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जानते हैं एक और बात बता रहे हैं आपको हम कि जैसे ना मेरे क्लोज में कोई है, ठीक है, हमको बोला गया था ऐसा चीज, तो हम मतलब नहीं, इग्नोर हो गया बहुत समय पहले का। अचानक अभी हम 1 महीना पहले का बात बता रहे हैं, हम अपनी दीदी से भी बोले थे एक बार कि कोई बात मन में आया और हम अपने कृष्ण से बोले, ठीक है, भगवान के सामने आदमी बोलता है ये कोई चीज, तो हम बोले, और हम अचानक से हम कहीं जा रहे थे, आपका सोमवार का क्लास में था, हम बस में अपना फोन चेक कर रहे हैं, हमको बस में वही प्रेयर जो प्रेयर हम अपने भगवान से किए थे आया। कैसे आया नहीं समझ में आया, जिससे लगा ना कि जैसे कोई आपको माइंड को खींच रहा है अपने पास, और इतना हमको उस समय डर भी हो रहा, खराब भी लगा, और अपनी दीदी से सारा बातें बोले, और हम बोले दीदी कोई माइंड से जैसे खेल रहा है कोई किसी का, इस तरह से हुआ। ऐसे माइंड रीडिंग ये सब, मन रीडिंग ये सब होता है, बहुत है। सिद्धिया पर आप किसी का होता है, वो अपना बहुत एक चीजों के अपना अपना फेमस बनने के लिए सब प्रचार करते हैं। अद्भुत चरण प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कई बार ये धनी लोग इसलिए जुड़ते हैं ताकि नेटवर्किंग हो सके। हाँ। उनको गुरु से कोई लेन देना नहीं रहता है, बिजनेस पर्पस से भी जुड़ते हैं, लेकिन जो दूसरे अबोध जनताएं हैं वो उन धनियों को देखकर आकर्षित हो जाते हैं और वो फॉल्स फेथ करने लगते हैं। हालांकि वहाँ पे स्वार्थ धनियों का वहाँ पे रहता है, ये एक दूसरे से नेटवर्क, और गुरु भी ये चीजों में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कैसे दोनों को दो बिजनेस आइकन को कैसे जोड़ा जाए। ज्यादातर ये चल रहा है, ये बड़े बड़े संस्थाओं में या बड़े बड़े जो महात्मा आजकल नए बन रहे हैं उसमें, तो उससे आकर्षित नहीं होना चाहिए। Yes. करुणा राधे माता जी, गॉट लॉट ऑफ एग्जांपल्स। तो अगर मंदिर में विग्रह भी है, लेकिन उस विग्रह को किस रूप में वो आराधना कर रहा है, क्या सोचकर आराधना कर रहा है कि मैं भी एक बार इस विग्रह में विलीन हो जाऊंगा, जैसे गौरांग महाप्रभु ने विलीन हो गया था, जैसे नित्यानंद प्रभु ने बांकाराय में विलीन हो गया था, वैसे हम भी एक दिन विलीन हो जाएंगे। ऐसे मैं भी एक दिन विग्रह में प्रवेश करूंगा और मैं भी विग्रह बन जाऊंगा, मैं भी भगवान बन जाऊंगा। क्या फिलॉसफी देखना पड़ेगा, सिर्फ विग्रह होना काफी नहीं है मंदिर में, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है। मूर्ति पूजा तो बहुत लोग करता है, जो देवी देवता को उपासना करता है उनमें कृष्ण को भी एक देवता मानता है, वो भी तो मूर्ति पूजा करता है ना। और हर एक को एक ही स्थान में रखना वो भी तो एक अपराध है, एक लेवल में बाकी देवी देवता को भगवान के साथ रखना। কেউ যখন ঐকান্তিক ভাবে পূর্ণরূপে ভগবত ভক্তিতে যুক্ত হন, তখন আর কোনো অবস্থাতেই তার অধঃপতন হয় না। তখন তিনি ত্রিগুণাত্মিকা জড়জগতের স্তর অতিক্রম করে ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত হন। তাই যেই সমস্ত মূর্খ জীব মনে করে যে ভগবান নেই, অথবা যদি তিনি থেকেও থাকেন তবে তিনি নিরাকার ও নির্বিশেষ, আসলে তারাই হচ্ছে এক একটি ভগবান। তাদের সেই ভয়ঙ্কর অধঃপতিত অবস্থা থেকে রক্ষা করার একমাত্র আশার আলোক হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনামৃত আন্দোলন। আগলা শ্লোক 121। ব্যাসের সূত্রেতে করে কহে পরিণামবাদ, ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ, ব্যাস ভ্রান্ত বলি তার উঠাইল বিবাদ। व्यास भ्रांत बोली तार उठाइलो विवाद। आप लोग को इस चैप्टर को थोड़ा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि आने वाले एक हफ्ता पूरा महाप्रभु खंडन कर रहा है और प्रभुपाद लंबा चौड़ा परपोट दे रहा है, यही चलेगा।
বেদান্ত সূত্রে শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে সবকিছু হচ্ছে ভগবানের শক্তির রূপান্তর, কিন্তু শঙ্করাচার্য সমস্ত জড়জগৎকে বিভ্রান্ত করে মন্তব্য করলেন যে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত। এভাবেই তিনি সমগ্র জগতের আস্তিকবাদের মহাবিরোধের সৃষ্টি করেছেন। ঠিক আছে, ব্রহ্ম সত্য জগৎ मिथ्या ऐसे बोला है। तात्पर्य समझ में आया? ये अनुवाद समझ में आया? पढ़ लीजिए एक बार हिंदी में, देखिए अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है 121 का अनुवाद देखिए प्लीज। শ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীল ভক্তি বিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রীল ব্যাসদেব তার বেদান্ত সূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। হ্যাঁ বলুন। तो अनुवाद को एक बार समझाइए ना। বেদান্ত সূত্রে শ্রীল ব্যাসদেব বর্ণনা করেছেন যে সবকিছু হচ্ছে ভগবানের শক্তির রূপান্তর। ये समझ में आया? हाँ ना बोलिए अनम्यूट करके। जी प्रभु जी। কিন্তু শঙ্করাচার্য সমস্ত জগৎকে বিভ্রান্ত করে মন্তব্য করলেন, মানে जगत मिथ्या है, ये संसार माया है। व्यासदेव सिद्धांत भ्रांत, उन्होंने बोला है कि व्यासदेव का सिद्धांत गलत है। अभी तक ठीक है? तो सही को भी गलत बता रहे हैं, यही ना? हाँ, व्यासदेव जी का सिद्धांत को गलत बोला है। व्यासदेव तो साक्षात भगवान का अवतार है, गलत बोला है। व्यासदेव जी बोला है कि ये सब रूपांतर, ये भगवान का शक्ति का रूपांतर है। भगवान का ये जड़ जगत जो है भगवान का शक्ति से बना हुआ है, तो भगवान का ही एक्सपेंशन है ये जड़ जगत, माया नहीं है। ये प्रिजन हाउस है, यहाँ भक्त लोग को, व्यक्तियों को, बद्ध जीवों को सुधारा जाता है, तो ये भ्रांत नहीं है। लेकिन शंकराचार्य बोला कि नहीं नहीं, सब जगत भ्रांत है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, और ये व्यासदेव जी का जो सिद्धांत है ये गलत है। এভাবেই তিনি সমগ্র জগৎকে आस्तिकवादेर महाविरोध सृष्टि करेছে। समस्त जगत आस्तिक था, भगवान को मानते थे, लेकिन शंकराचार्य ने आस्तिकवाद को भ्रांत किया, बोला नहीं भ्रांत है, गलत है, ऐसे बोला है शंकराचार्य। ओके, यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो ऐसे हुआ ना, अर्ध कुकुट ज्ञान जैसे ही हो गया ना। भगवान को मानेंगे लेकिन जड़ जगत को नहीं मानेंगे। हाँ, और एक पीछे वाला पोर्शन मांगेंगे जहाँ से अंडा आ रहा है, सामने वाले पोर्शन को नहीं मानेंगे। नहीं, व्यासदेव के वेद को मानते हैं, वेद की तर्कों को नहीं समझते, मानते हैं उस तरीके से। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিশ্লেষণ করেছেন, শ্রীল ব্যাসদেব তার বেদান্ত সূত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে সমস্ত জড়জগৎ সৃষ্টি হয়েছে ভগবানের শক্তির পরিণাম, কিন্তু শঙ্করাচার্য ভগবানের শক্তিকে স্বীকার না করে সিদ্ধান্ত করলেন যে भगवानी विकारग्रस्त हन। ये देखिए, ये मायावाद है, भगवान का ही विकार होता है, ये एकदम पूरा मायावाद। इसको निर्विशेष बोलिएगा मत, इसको एकदम पूरा कट्टर मायावाद के भगवान का विकार हो जाए। देखो, भगवान जगत में आकर चोरी करता है, रासलीला करता है, खुद ही माया में फंस गया, ऐसे बोलता है। তিনি বেদের বহু উক্তির বিকৃত অর্থ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে পরম তত্ত্ব বা ভগবান যদি রূপান্তরিত হন তাহলে তার অদ্বৈত ব্যাহত হবে। भगवान अगर रूपांतरित, यानी भगवान निराकार है, लेकिन अगर भगवान को अब रूप देंगे, भगवान को अवतार बोलेंगे, तो भगवान फिर माया में फंसता है। समझ में? भगवान एक्चुअली निराकार है उन लोग के हिसाब से। भगवान जो रूपांतरित है, माने रूपांतरित माने अगर उनको आकार दीजिएगा, साकार बनाइएगा, तो फिर कंटेमिनेशन होगा ही होगा। এইভাবেই তিনি প্রচার করেছেন যে ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত ভুল, তাই অদ্বৈতবাদের মাধ্যমে তিনি বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঠিক আছে, শঙ্করাচার্য। আগলা প্যারাগ্রাফ, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রথম সূত্রটি হচ্ছে তন্নতমারম্ভন শব্দাদিভ্য। শঙ্করাচার্য তার শারীরক ভাষ্যে এই সূত্রের ব্যাখ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে বাচারং ভঙ্গনং বিকার नाम ध्येयम आदि वेद वाक्य उदाहरण दिए परिणामवाद के दोषयुक्त विकारवाद बोले वितर्क करेছেন। ये कोई मायावाद सिद्धांत है, और शंकराचार्य ने इसे
ये छंदोग्य उपनिषद को समझाया है। ये वाला जो दिया हुआ है 61A4 ভগবানের শক্তি পরিবর্তন বা পরিণামকে তিনি ভ্রান্তভাবে অস্বীকার করার চেষ্টা করেছেন, যা পরে বিশ্লেষণ করা হবে। যেহেতু তার মতে ভগবান নির্বিশেষ, তাই তিনি বিশ্বাস করেন না যে সমস্ত জড় সৃষ্টি হচ্ছে ভগবানের শক্তির পরিণাম। কেননা পরম তত্ত্বের শক্তি যদি স্বীকার করা হয়, তখন অবশ্যই পরম তত্ত্বকে সবিশেষ রূপে বা একজন ব্যক্তি রূপে স্বীকার করতে হবে। কোন ব্যক্তি তার শক্তি রূপান্তর দ্বারা অনেক কিছুই তৈরি করতে পারে। যেমন একজন ব্যবসায়ী অনেক বড় বড় কলকারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার শক্তি রূপান্তর করতে পারে, কিন্তু তবুও তিনি সেই মানুষটিই থাকেন। মায়াবাদীরা এই সরল তত্ত্বটি বুঝতে পারে না। তাদের ক্ষুদ্র समझ में है ये चीज को अस्वीकार करते। वैष्णव फिलोसफी क्या, अगर कोई व्यक्ति को चीज बनाया, हाँ, तो वो चीज निराकार, वो चीज में अस्तित्व माने कोई प्राण नहीं रह सकता, लेकिन इसका मतलब नहीं कि व्यक्ति में भी प्राण नहीं है। सोचिए फॉर एग्जाम्पल दिलीप प्रभु, कोई कोई फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री में सोचिए चश्मा बन रहा है, तो चश्मा पे प्राण है? नहीं है। तो इसका मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है उसमें भी प्राण नहीं है? ये तो गलत है। फिर इसी तरह ये जड़ जगत बनाया है, जड़ जगत में तो लाइफ नहीं है ना। ये सब जड़ जगत में जो वस्तु है, वस्तु का तो नॉन लिविंग थिंग का तो लाइफ होता नहीं है। नॉन लिविंग थिंग बोलते हैं ना हम लोग। तो इसका मतलब जिन्होंने बनाया उसका भी लाइफ नहीं है। ये बोगस फिलोसफी। अरे किसी का लाइफ है, जिसका लाइफ है वही तो कुछ बना सकता है। जो व्यक्ति सृष्टि करेगा, अगर उसका कोई लाइफ नहीं है, आकार नहीं है, वो कैसे बनाएगा? পরন্ত তাদের ক্ষুদ্র মস্তিষ্ক অল্প জ্ঞানের প্রভাবে তারা বুঝতে পারে না যে একজন মানুষের শক্তি রূপান্তরিত হলেও সেই মানুষটির কোনো রূপান্তর হয় না, সেই মানুষটি অপরিবর্তিতই থাকেন। समझ में आया? यस प्रभु जी। পরম তত্ত্বের শক্তি যে রূপান্তর হতে পারে সেই কথা বিশ্বাস না করে শঙ্করাচার্য তার মায়াবাদ সৃষ্টি করেছেন। সেই মায়াবাদ দর্শন অনুসারে যদিও পরম তত্ত্বের কোনো রূপান্তর হয় না, তবুও আমাদের মনে হয় যে তার রূপান্তর হয়েছে এবং সেটি হচ্ছে মায়া। শঙ্করাচার্য পরম তত্ত্বের শক্তির রূপান্তরের বিশ্বাস করেন না, তাই তিনি দাবি করেছেন যে সবকিছুই এক এবং সেই সূত্রে জীব ঈশ্বর। এই মতবাদকে বলা হয় মায়াবাদ। শ্রীল ব্যাসদেব বিশ্লেষণ করেছেন যে পরম তত্ত্ব হচ্ছেন একজন পুরুষ যার বিভিন্ন শক্তি রয়েছে। কেবলমাত্র তার ইচ্ছার প্রভাবে তিনি সৃষ্টি করতে পারেন এবং তার দৃষ্টিপাতের দ্বারা স্ব-ঐক্যত তিনি এই জড় জগৎ সৃষ্টি করেছেন, স্ব-অসৃজত। ठीक है, ये व्यासदेव का सिद्धांत है कि परम तत्व क्या बोल रहे व्यासदेव जी, एक पुरुष है और उनका अलग अलग शक्ति है और उनका इच्छा से ही वो उन्होंने जड़ जगत प्रकट किया है। ये व्यासदेव जी का कथन है। सृष्टिर परेও তিনি সেই একই पुरुष থাকেন। पहले भी भगवान भगवान ही थे, और जब ये ब्रह्मांड का लय हो जाएगा, प्रलय होगा, फिर भी भगवान का क्षय हो जाएगा? कभी नहीं। भगवान जैसा है वैसे ही रहेगा, भगवान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। সৃষ্টির পরেও তিনি সেই একই পুরুষ থাকেন। তিনি সবকিছুইতেই তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেন না। ऐसा नहीं कि प्रलय हो गया तो भगवान भी प्रलय हो जाएगा, भगवान की भी नहीं, ऐसा नहीं है। ভগবানের শক্তি যে অচিন্ত এবং তার আদেশে ও তার ইচ্ছার প্রভাবে যে এই বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হয়েছে তা স্বীকার করতেই হবে। বৈচিত্র্যময় জগৎ মানে জগৎ में जो ভ্যারিগেটেডনেস है। বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে সতত जो भी है। এই মন্ত্রে নির্দেশ করেছে যে একটি সত্য তত্ত্ব থেকে অন্য একটি সত্য তত্ত্বের উদয় হলে তাকে অন্য বস্তু বলে যে ধারণা, সেটি হচ্ছে বিকার অর্থাৎ পরিণাম। দৃষ্টান্ত রূপে একজন পিতা হচ্ছেন একজন সত্য তত্ত্ব এবং পিতা থেকে উৎপন্ন একটি পুত্র হচ্ছে একটি দ্বিতীয় সত্য তত্ত্ব। এভাবেই তারা উভয়ই সত্য তত্ত্ব, যদিও একটি আরেকটির থেকে উৎপন্ন। तो भगवान से हम लोग उत्पन्न हुआ, लेकिन हम लोग का अस्तित्व अलग है और भगवान का अस्तित्व अलग है। वैसे पिता माता से हम लोग का उत्पन्न हुआ,
लेकिन सबका तो अस्तित्व अलग है ना, पुत्र का अलग अस्तित्व हो गया और माता पिता का अलग। প্রথম সত্য তত্ত্ব থেকে উৎপন্ন দ্বিতীয় সত্য তত্ত্ব দিকে বলা হয় বিকার বা পরিণাম। পরম ব্রহ্ম হচ্ছে পরম তত্ত্ব এবং অন্য যে সমস্ত শক্তি তার থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং স্বতন্ত্রভাবে বিরাজ করছে, যেমন জীব ও প্রকৃতি, এরাও সত্য। तो भगवान भी सत्य है, हम लोग भी सत्य है। भगवान से जो भी निकला है हम लोग मिथ्या नहीं है, जीव भी सत्य ही है। এটি হচ্ছে বিকারের বা পরিণামের এক দৃষ্টান্ত। বিকারের আরো এক দৃষ্টান্ত হচ্ছে একটি সত্য বস্তু দুগ্ধের আরো একটি সত্য বস্তু দধিতে পরিণত হওয়া। দধি হচ্ছে দুগ্ধের পরিণাম, যদিও দধি ও দুগ্ধের উপাদান এক। ओके, तो परम तत्व का और एक क्या विकार का बता रहे हैं? विकार का और एक एंगल क्या है कि दूध से दही का भी विकार हो सकता है। परम तत्व अगर अपने आप को तमोगुण में थोड़ा लिस्ट ला लेंगे तो शिव जी बन जाएंगे। समझ में आया? दो तरह का विकार हो सकता है। एक, परम तत्व अपने आप को जीव में विस्तृत कर सकता है और फिर भी भगवान अस्तित्व अलग रहेगा, जो भी उनसे निकलेगा वो भी अस्तित्व अलग रहेगा, जैसे हम लोग का एग्जाम्पल में। ये एक नंबर है। 2 नंबर पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि परम तत्व अपने आप में थोड़ा विकार ला सकता है जानबूझ के, और शिव जी बन जाएगा। यस, निर्मला बड़ी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, इधर विकार वर्ड क्यों यूज किया गया? विकार मतलब तो कुछ चीज गड़बड़ है उसके लिए होता नहीं है। नहीं, हाँ, तमोगुण में आ जाते हैं, पर तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं भगवान, अपने स्वेच्छा से तमोगुण को एक्सेप्ट करते हैं और शिव तत्व बन जाते हैं। उसीलिए विकार यूज किया गया है। जिस तरह से दूध में थोड़ा एसिड डाला जाता है, साइट्रिक एसिड, उसको विकार, ठीक है। अच्युत करुणेश्वर प्रभु। प्रभु जी एक प्रश्न और था, फिर लिखा गया कि शक्ति रूपांतरित होती है, तो वो फिर कैसे विकार हो गया? परमात्मा से जो आत्मा का एक्सपेंशन होता है फिर वो? हाँ, वो विकार है ना। अभी विकार शिव जी के लिए बोला गया है, अच्छा, हम लोग के लिए नहीं। शिव जी के लिए विकार बोला है बिकॉज तमोगुण को स्वेच्छा से स्वीकार कर रहा है और रूपांतरित तो हो रहा है। शिव जी का तो आकार है, अच्छा, जीवों का तो आकार है, तो परम तत्व से तो रूपांतरित हो रहा है। परम तत्व अपना शक्ति को यूज कर रहा है रूपांतरित करने के लिए। हम लोग का रूप है, भगवान का भी रूप है और शिव जी का भी रूप है। यस, अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यहाँ विकार शब्द इसलिए उपयोग किया गया है परिणाम स्वरूप। जैसे रूपांतर होता है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो भी एक अलग अस्तित्व होता है, ऐसा नहीं कि। तो यहाँ पे इसलिए दूध और दही का वर्णन किया गया क्योंकि दही में भी दूध का ही रूपांतरित होकर दही बनता है। उसमें अंश तो दूध के पाए जाते हैं, अलग नहीं होता है। अस्तित्व में अलग होता है लेकिन है, अस्तित्व में है। तो इस वजह से दूध और दही का यहाँ पे शिव जी का कहीं उदाहरण के लिए नहीं लिया गया है, वो अलग ही एग्जाम्पल है प्रभु। প্রভু বিকারের আরেকটি দৃষ্টান্ত, বিকার का আরেক দৃষ্টান্ত है कि একটি সত্য বস্তু দুগ্ধের আরেকটি সত্য বস্তু দধিতে পরিণত হওয়া। हाँ, দধি হচ্ছে দুগ্ধের পরিণাম, যদিও দধি ও দুগ্ধের উপাদান এক। तो 2 प्रकार का विकार बोला गया है। एक है भगवान परम तत्व से जीव बनना और एक परम तत्व में थोड़ा विकार लाकर दधि में कन्वर्ट होने का। तो परम तत्व भगवान जीव रूप में भी अपने आप को विस्तार कर रहे हैं, रूपांतरित कर रहे हैं, और वही परम तत्व भगवान थोड़ा अपने आप विकार स्वीकार करके दधि में कन्वर्ट हो रहा है। ये तो हमको हमारे हिसाब से तो शिव जी के लिए इंगित कर रहा है, हालांकि प्रभुपाद ने इसमें नाम ने उल्लेख किया। फिर लास्ट लाइन में प्रभु जी देखिए ना क्या दिया, इस तरह दही दूध का विकार है, यद्यपि दूध तथा दही के अवयव एक ही हैं। हाँ, तो हम लोग भी जीव तत्व है, प्रभु जी हम लोग भी भगवान से आया है और शिव जी भी भगवान से ही आया है, कृष्ण से आया है। शक्ति और शक्तिमान का जो वर्णन हो रहा था ऊपर से, उसी का ही कंटिन्यूएशन जो है प्रभुपाद महाराज, इसलिए ये एग्जाम्पल। व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज जीव तत्व यानी हम लोग और शिव तत्व दोनों ही भगवान से आया है। यद्यपि जीव भी और शिव जी भी दोनों ही भगवान से ही, दूध से ही आया है। दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ जीव का जो उल्लेख किया गया, हम लोगों का जो किया जा रहा है प्रभु, तो नहीं मिल पाएगा कहीं की। आस्ते से बोलिए, स्लोली। जीव जो है, जैसे हम पिता से उत्पन्न हुए हैं, तो जैसे पिता का मटेरियल है उस तरह हमारा भी मटेरियल है, हम भूत है, जीव भूत है।
लेकिन भगवान के साथ इस चीज को तुलना कैसे किया जाएगा, क्योंकि भगवान अलग, मैंने क्या बोलते हैं, ईश्वर तत्व है और जीव जो होता है भौतिक तत्व हो जाता है। तो दोनों का मैंने सिमिलरिटी तो नहीं है। हायरार्की में बोल रहे हैं आप? नहीं, ये तो एक उदाहरण आपने दिया ना प्रभु की। नहीं, यहाँ उदाहरण चल रहा है कि भगवान जब अपने आप को रूपांतरित शक्ति को यूज करके रूपांतरित करना चाहते हैं तो जीव में एक्सपेंड करते हैं। भगवान जब और एक भी करता है विस्तार में, और एक चीज है, भगवान अपने आप में थोड़ा विकार लेता है और चेंज हो जाता है। तो उसमें लिखा नहीं किस चीज में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उदाहरण दिया है कि दूध में थोड़ा विकार लाने से दही में हो सकता है उसमें गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है। इधर मैं करूंगा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, इधर एक टू एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि गाय है, गाय से बछड़ा आता है, से बछड़ा से वो उससे माने तो दूसरा गाय हो सकता है, और दूसरा क्या है, गाय से दूध भी आ सकता है, तो उससे गोबर भी आ सकता है। तो ये सेम किस्म का नहीं है। जैसे कि पहले हम लोग सोचते थे जो जड़ जगत आया भगवान से, लेकिन भगवान और जड़ जगत का क्वालिटी थोड़ा ये है, जैसे गाय से दूध है, गाय से गोबर है, ऐसे ये हो सकता है। लेकिन दूसरा क्या है, भगवान से भगवान का जो अवतार आते हैं ये भी सेम किस्म का है। जैसे कि फादर से लड़का आता है तो फादर उसमें उनका कोई कमती नहीं हो जाता है, फादर जैसे थे ऐसे ही है। भगवान से भी जगत आया, लेकिन उससे भगवान का कोई कमती नहीं हुआ, भगवान जैसे थे ऐसे है। और भगवान से अवतार आया, उसमें भी भगवान का कोई कमती नहीं हुआ, लेकिन जो अवतार आए हैं उसको हम लोग जैसे किसी का लड़का होता है, लड़की होता है, उससे फिर सेम चीज हो सकता है ना। इसको थोड़ा एग्जांपल दिया है। নেক্সট প্যারা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত হয়েছে ঐতদাত্মামিদং সর্বম, এই বেদ বাক্য থেকে ব্রহ্মই যে জগৎ সেই সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। পরম তত্ত্বে অচিন্ত শক্তি সমূহ রয়েছে, সেই কথা শ্বেতাশ্বর উপনিষদেও প্রতিপন্ন হয়েছে। পরস্য শক্তি বিবিধৈব শ্রয়তে, এই সমস্ত জাগতিক সৃষ্টি ভগবানের সেই বিভিন্ন শক্তির প্রমাণ। পরমেশ্বর ভগবান সত্য বস্তু, তাই তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেন তাও সত্য, সবকিছুই সত্য পূর্ণ পূর্ণম। কিন্তু পরম পূর্ণম বা পরম সত্য সর্ব অবস্থাতেই একই থাকেন। পূর্ণাৎ পূর্ণম উদচ্যতে পূর্ণস্য পূর্ণমাদায়। পরম তত্ত্ব এমনই পূর্ণ যে যদিও তার থেকে অসংখ্য পূর্ণ বস্তুর প্রকাশ হয় এবং সেগুলি তার থেকে পৃথক বলে মনে হয়, তবুও তার পূর্ণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে, কোনো অবস্থাতেই তা ক্ষয় হয় না, डायल्यूशन नहीं होता। जितना भी अवतार निकलेगा, जीव निकलेगा, लेकिन भगवान भगवान ही रहेगा, कोई डायल्यूशन नहीं होगा। यस, निर्मला नीलमणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कंफ्यूजन था। जैसे हिरण्मय प्रभु जी बोले कि पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, तो उसको हम भगवान से कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं? भगवान के व्यक्तित्व में तो कुछ भी खत्म नहीं होता, लेकिन पिता तो बूढ़ा होता है, फिर वो मर भी। नहीं, उस एग्जाम्पल को उस तरह से मत लीजिए। अच्छा। प्रभु यही बोलना चाह रहा था, पिता का कोई डायल्यूशन नहीं होता है। सोचिए, पिता से पुत्र उत्पन्न, माता पिता से पुत्र उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं कि, हालांकि थोड़ा विमेन लोग तो फीमेल हो जाता है डिलीवरी के बाद, लेकिन यहाँ यही बोलना चाह रहे हैं कि कुछ लय प्राप्त नहीं होता है, डायल्यूशन नहीं होता है। कुछ व्यक्ति तो व्यक्ति रहता है, ऐसा नहीं कि व्यक्ति से एक व्यक्ति निकल गया तो पहला वाला व्यक्ति आधा हो गया, ऐसा तो नहीं होता है ना। वही उस एंगल से बोलना चाह रहा था। तो भगवान से बहुत अवतार निकल गया, बट भगवान में कोई डायल्यूशन होता है क्या? इसलिए नहीं, कुछ डायल्यूशन नहीं होता, जैसा है पुण्य में रहता है। वही बोलना चाह रहे थे प्रभु। অতএব যথার্থ সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সমস্ত জগৎ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির বিকার, এমন নয় যে পরমেশ্বর ভগবান বা পরম ব্রহ্ম স্বয়ং বিকৃত হন। ওই সেম চিজ ফিরসে বললে প্রভুপাদজি, তিনি সর্বাবস্থাতেই একই থাকেন। জড় জগৎ ও জীব হচ্ছে আদি উৎস ভগবান, পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্মের শক্তির বিকার। পক্ষান্তরে পরম তত্ত্ব ব্রহ্ম হচ্ছেন মূল উৎপাদন এবং অন্য সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে সেই উৎপাদনের বিকার। ठीक है, इस तरह से हम लोग विकार वर्ड यूज कर रहे हैं इधर प्रभुपाद जी के एक्सपेंशन। भगवान परम तत्व है और जो भी एक्सपेंशन है इट इज लाइक अ परम तत्व का विकार, माने एक्सपेंशन। विकार माने
নেগেটিভলি মত লিজিয়েগা। সেই কথা তৈত্রীয় উপনিষদে প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে, যত বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, সমস্ত জড়জগৎ উদ্ভূত হয়েছে পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে। এই শ্লোকে বর্ণনা করা হয়েছে যে ব্রহ্ম বা পরম তত্ত্ব হচ্ছে আদি কারণ এবং জীব ও জড়জগৎ হচ্ছে সেই কারণের কার্য। কারণটি যেহেতু সত্য, তাই তার কার্যটিও সত্য, তা মায়া নয়। শঙ্করাচার্য সামঞ্জস্যহীন ভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে ব্রহ্মের বিকার জীব ও জগৎ হচ্ছে মায়া, কেননা তার মতে জীব ও জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এবং পৃথক। এভাবেই কদর্থ করে মায়াবাদীরা প্রচার করে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। পরম তত্ত্ব বা ব্রহ্ম হচ্ছেন সত্য, কিন্তু জগৎ ও জীব মিথ্যা, অথবা তা সবই প্রকৃতপক্ষে পরম তত্ত্ব এবং জড়জগৎ ও জীবের ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। हम लोग मिथ्या है, हम लोग माया इल्यूजन है, सपना जैसा है हम लोग। क्या हम लोग सपना जैसा है? हम लोग का क्या अस्तित्व नहीं है? है। जड़ जगत का क्या अस्तित्व नहीं है? है। तो ब्रह्म सत्य और जगत सत्य दोनों ही सत्य है। তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পরমেশ্বর ভগবান জীব ও জড়জগৎকে অবিচ্ছেদ্য ও অজ্ঞান বলে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে শঙ্করাচার্য পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা আচ্ছাদন করার চেষ্টা করেছেন। তার মতে জড়জগৎ মিথ্যা, কিন্তু সেটিও একটি মস্ত বড় ভুল। পরমেশ্বর ভগবান যদি সত্য হন, তাহলে তার সৃষ্টি মিথ্যা হবে কিভাবে? আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দেখতে পাই যে এই জগৎকে আমরা মিথ্যা বলে মনে করতে পারি না। তাই বৈষ্ণব দর্শনে বলা হয় যে জড়জ সৃষ্টি মিথ্যা নয়, তবে অনিত্য। तो भगवान भी सत्य नित्य है, लेकिन जड़ जगत अनित्य है, लेकिन दोनों ही सत्य है। তা পরমেশ্বর ভগবান থেকে ভিন্ন, কিন্তু যেহেতু তা ভগবানেরই শক্তির দ্বারা অদ্ভুত ভাবে সৃষ্টি হয়েছে, তাই তাকে মিথ্যা বলা অন্যায়। अभी तक किसी का कोई प्रश्न है, कोई सेंटेंस जो समझ में नहीं आ रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो यहाँ पे ये भगवान को भी मिथ्या समझते हैं क्या मायावाद? नहीं, भगवान को अस्तित्व को स्वीकार करता है, ये और एक प्रकार का मायावाद है, लेकिन बोलता है कि जड़ जगत पूरा भ्रांत है, माया है। और भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान भी माया में फंस जाता है। भगवान एक्चुअली निराकार है उन लोग के हिसाब से, लेकिन भगवान अपने आप को रूपांतरित करते हैं जगत में लीला करने के लिए। वही निराकार भगवान साकार रूप लेते हैं। यस, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ पर ये भी तो लॉजिक आ सकता है कि भगवान सत्य माने ईश्वर सत्य है, जीव मिथ्या है, तो जीव चूंकि नश्वर है और भगवान नश्वर नहीं है, नित्य है। या तो इस लॉजिक से उनका जो मायावादी प्रचार है, ये शायद उनका दर्शन है। सत्य माता जी, और वो निराकार भी है, लीला भी करते हैं, तो ये कैसे वो लोग सोच सकते हैं ऐसे निराकार कोई लीला करता है? लीला करते कहाँ लिखा है? उन लोग कहाँ लिखा है लीला करते हैं? तभी अभी आपने बोला ना, जड़ जगत में आते हैं लीला करने के लिए। हाँ, यस, सही बोला। ऐसे ऐसे इसको इस तरह से लीजिए। उन लोग बोलते हैं कि भगवान एक्चुअली निराकार है, लेकिन भगवान अपने आप को रूप स्वीकार करते हैं। भगवान निराकार है उन लोग के हिसाब से, लेकिन ये रूप स्वीकार करते हैं लीला करने के लिए और माया में फंस जाते हैं। तो ये जो जड़ जगत में जो कृष्ण है, ये माया वाला कृष्ण है। ओरिजिनल कृष्ण निराकार है, ये मायावाद फिलोसफी है। लेकिन भगवान भगवत गीता में बोलते हैं अवजानान्ति मामूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम्। मनुष्य शरीर को आश्रित किया, उसीलिए लोग सोचता है कि मनुष्य 84 लाख योनि में आता है, तो मैं भी उनमें जैसे एक हो गया। ओके, অভক্তেরাও বিস্ময়কর জড় সৃষ্টির মহিমা উপলব্ধি করতে পারে, কিন্তু এই জড় সৃষ্টির আড়ালে যিনি রয়েছেন সেই পরমেশ্বর ভগবানের বুদ্ধিমত্তা ও শক্তির মর্ম তারা উপলব্ধি করতে পারে না। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য ঐত্রেয় উপনিষদ থেকে আত্মা বা ইদমর্গ অসিত এই সূত্রের উদ্ধৃতিতে দিয়েছে, যাতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমাত্মা বা পরম সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান ছিল। কেউ বলতে পারে পরমেশ্বর ভগবান যদি পূর্ণরূপে চিন্ময় হন, তাহলে তার মধ্যে জড় ও চেতন উভয় শক্তি বিরাজ করে কি করে, এবং তিনি জড় সৃষ্টি উৎস হন কেন, হন কি করে?
ठीक है, समझ में आया? एक नया क्वेश्चन कि भगवान अगर चिन्मय है तो जड़ सृष्टि की उनमें है, वो कैसे जड़ चीज को बना सकता है? तो भगवान तो चिन्मय है, चिन्मय व्यक्ति सिर्फ चिन्मय चीज ही बना सकते हैं। তার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজাচার্য তৈত্রীয় উপনিষদে একটি মন্ত্র উল্লেখ করেছেন, যত বায়মানি ভূতানি জানতে যে জাতানি জীবন্তি যৎ বিশন্তি। এই মন্ত্রে প্রতিপন্ন হয়েছে যে সমস্ত জগৎ পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবান থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাকে আশ্রয় করেই বিরাজ করছে এবং প্রলয়ের পর তারই শরীরে লীন হয়ে যাবে। প্রকৃতপক্ষে জীব চিন্ময় এবং সে যখন চিৎ জগতে প্রবেশ করে বা পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে প্রবেশ করে, इसमें गड़बड़ मत लीजिएगा, परमेश्वर भगवान शरीरे प्रवेश करे इसको गलत सेंस में मत लीजिएगा, তখনও স্বতন্ত্র আত্মারূপে তার অস্তিত্ব বজায় রাখে। পরমেশ্বর ভগবানের শরীরে प्रवेश करे माने ब्रह्मज्योति प्रवेश करे जीव, लेकिन ब्रह्मज्योति में अगर प्रवेश किया जीव, उनका स्वतंत्र उनका अस्तित्व एक रहता है या अलग हो जाता है? अलग ही था, अलग ही रहता है। क्या वो भगवान बन जाता है ब्रह्मज्योति में प्रवेश करने के लिए? नहीं, वो जीव का अस्तित्व अलग ही रहता है। यहाँ पर प्रभु हरे कृष्ण, यहाँ पर तो ये जो महाप्रलय होता है उस समय भी तो भगवान पे प्रवेश करता है। हाँ, वो अलग है, वो ब्रह्मज्योति प्रवेश जैसा नहीं है, वो तो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश कर लेता है, पूरा ब्रह्मांड। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर जीव रहता है तो वो भी प्रवेश कर लेता है, वो अलग चीज हो गया। और ब्रह्मज्योति में प्रवेश करना अलग चीज हो गया। लेकिन दोनों केस में ही अचूक करने के प्रभु जीव का अस्तित्व अलग ही रहता है, सेपरेट रहता है। सेपरेट रहता है, वो भगवान नहीं बन जाता है, चाहे वो महाविष्णु के अंदर गया या ब्रह्मज्योति में लीन हो गया। अद्भुत चरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद महाराज बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं क्लैरिटी के लिए आगे। वो ग्रीन बर्ड इनटू ग्रीन ट्री, वही वाला। यस 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 यस, आ रहा है यो एग्जांपल। এই সম্পর্কে শ্রীপাদ রাম वो और एक भी एग्जांपल देते ना प्रभुपाद, फीस इन ओशन। प्रभुपाद बोलते फीस इन ओशन, ऑल रिवर्स मर्ज इनटू द ओशन। तो मायावाद लोग बोलते हैं सब समुद्र नदी में चला जाता है, सॉरी सब नदी समुद्र में चला जाता है, तो उसी तरह हम भी समुद्र में जाएंगे और समुद्र में जाने से थोड़ी पता चलता है कौन क्या नदी है, सब तो समुद्र ही बन जाता है। तो हम लोग भी जब भगवान में प्रवेश करेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। तो प्रभुपाद उदाहरण देता है, नो आवर फिलॉसफी इज वी आर फिश इन द रिवर एंड व्हेन द रिवर एंटर्स द ओशन द आइडेंटिटी ऑफ द फिश इज स्टिल मेंटेन्ड। क्या परफेक्ट उदाहरण ना। समुद्र में जब मछली घुसता है, समुद्र में मछली भी समुद्र बन जाता है क्या? नहीं, मछली भी मछली रहता है। लेकिन अभी हम लोग यही बोल सकते हैं कि मछली नदी में था, अभी वो मछली समुद्र में चला गया। जैसे जीव जड़ जगत में था, अभी वो जीव भगवान धाम में चला गया, यही बोल सकते हैं। परफेक्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद देते हैं। এই সম্পর্কে শ্রীপাদ রামানুচার্য একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে একটি সবুজ পাখি যখন একটি সবুজ গাছে গিয়ে বসে তখন সে গাছ হয়ে যায় না। যদিও মনে হয় যে সে গাছের সবুজে লীন হয়ে গেছে, তবুও একটি পক্ষী রূপে তার अस्तित्व बजाय থাকে, ঠিক না? सोचिए एक क्या बोलते हैं, टिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? पैरट, पैरट बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, तो एक तोता सोचिए एक हरा वृक्ष में ची करके अंदर घुस गया, ठीक है? तो तोता भी ग्रीन, ट्री भी ग्रीन, तो सब बोले ग्रीन में चला गया, शायद तोता ट्री हो गया। तोता ट्री हो गया? नहीं, एकदम नहीं। आप अंदर जाके देखिए, तोता अंदर में है, बैठा हुआ है, खा रहा है कुछ फल वल, है ना? এই রকমই আরো একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, একটি পশু যখন বনের মধ্যে প্রবেশ করে তখন যদিও মনে হয় যে সেই পশুটি বনের মধ্যে লীন হয়ে গেছে, তবুও তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় থাকে। তেমনি জড়জগৎকে মায়া শক্তি ও তটস্থ শক্তি জীব তাদের স্বতন্ত্র বজায় রাখে। এইভাবে যদিও জড়জগতে পরমেশ্বর ভগবানের বিভিন্ন শক্তি পরস্পরের সঙ্গে ক্রিয়া করে, তবুও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখে। তাই জড় অথবা চেতন শক্তিকে লীন হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে তাদের स्वतंत्रता नष्ट হয়ে যায়। वहां भी हम लोग का स्वतंत्र रहता है। लोग बोलता है ना, वहां से कैसे पतन होता है? क्योंकि भगवान के धाम जाने के बाद भी व्यक्ति का तो जीव का तो स्वतंत्र रहता है ना, वो चाहे भी कभी भगवान को छोड़ के आ सकता है।
हालांकि चांसेस कम है इसे करेगा, लेकिन स्वतंत्र वहां भी रहता है। রামানুচার্যের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অনুসারে ভগবানের বিভিন্ন সমস্ত শক্তি যদিও এক, কিন্তু তবুও প্রতিটি শক্তি তাদের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখে। हाँ, भगवान का शक्ति में वैरायटी है, सबका अलग अलग कार्यकलाप भी है ना। जैसे भगवान का अंतरंगा शक्ति स्पिरिचुअल वर्ल्ड को देखता है, भगवान का बहिरंगा शक्ति मटेरियल वर्ल्ड को देखता है। ऐसे अलग अलग शक्ति है भगवान का, अलग अलग कार्य के लिए यूज करते भगवान। आनंद चिन्मय रस प्रतिभा ने क्या है, आनंद चिन्मय आनंद क्या, आनंद जोह भाष्य, अच्छा दूसरा कुछ है। শব্দটির কদর্থ করে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য বেদান্ত সূত্রের পাঠকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছে। এমনকি তিনি বেদান্ত সূত্রের প্রণয়তা ব্যাসদেবের ভুল ধারণার চেষ্টা করেছেন। বেদান্ত সূত্রের সবকয়টি সূত্রের এখানে পরীক্ষা করে দেখাবার প্রয়োজন নেই, তবে এটি আলাদা গ্রন্থে বেদান্ত সূত্র উপস্থাপন করার পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। हरि बोल। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वेदांत सूत्र का एक एक टीका को पकड़ के मायावाद लोग जो जो उल्टा पुल्टा लिखा उसको ठीक करके एक एक सिद्धांत को अच्छा से समझाना, वो भी प्रभुपाद जी सोच रहे थे। आई डोंट नो प्रभुपाद जी किया या नहीं ऐसे कुछ बुक्स जहां वेदांत सूत्र का हर एक एक सूत्र को लेकर इसका सही मीनिंग उसका एस्टेब्लिश करने का। हालांकि ये वेदांत सूत्र का भाष्य तो भागवतम है, तो उसमें तो प्रभुपाद जी ने पूरा परपोट लिखा है 10वां स्कंद तक, वो भी है। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, মদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। গোস্বামী কি জয়, শিল প্রভুপাদ কি জয় জয় জয়।